छोटा सा डाउट आया है, मतलब सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल वाला कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सा डाउट है. तो आई जस्ट राइट द क्वेश्चन एंड यू पीपल ट्राई डूइंग इट. ओके, सो द क्वेश्चन इज समवhat like, okay, the question is, there is an element, no, iron. There is an iron who has a mass number of iron with a mass number of 56. एक ion है जिसका mass number है 56 and contains 3 units of positive charge. So it contains 3 units of positive charge and it contains 30.4% more neutrons than electrons. More neutrons than electrons. So you have to predict that what is the symbol of this ion, what is the symbol of the ion. ठीक है, so I assume कि ये element supposing X है, इसके ऊपर +3 चार्ज है और इसका mass number 56 है. इतना तो हम कर सकते हैं ना? Check and tell me, इतना तो कर सकते हैं ना? Yes, ma'am. Atomic number Yes. इस element का मुझे नहीं पता, वो Z है. Can we follow till here? ठीक है. Yes. हाँ, ये जो 56 होगा that will be equal to what? 56 AMU will be equal to mass of proton plus mass of neutron, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल होता है. चेक करके बोलो. Yes. ठीक है. अब अगर ये एलिमेंट न्यूट्रल होता तो मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होते, बट इस पे पॉजिटिव चार्ज है. दैट मीन्स व्हाट? Number of electrons minus 3 is the number of protons. Can you agree to this? That's why it is having a positive 3 charge. There are 3 electrons lost by this element. So ये हो गई मेरी equation number 1, and then they are telling us that 30.4% of neutrons, more neutrons than electrons. So what is the number of neutrons if I want to calculate? Won't it be 130.4 divided by 100% है बोला है into number of electrons? Can you understand like this? Can you understand like this? 30% more neutrons हैं, तो 30% more मतलब 100 अगर number of electrons है तो number of neutrons कितने हो जाएंगे? 130.4 होंगे कि नहीं? Check it out. Will this be the calculation or not? So देखो दो equations आ गई और तुम्हारे पास वो दो unknown है, that is mass of proton निकालना है और mass of neutron निकालना है. इन दोनों equation से निकाल सकते हो number of protons and neutrons. Yes. ठीक है, solve करो. हाँ बोलो. Second equation समझ में नहीं आई. बेटा 30%, 30.4% more neutrons हैं. हाँ. 130.4. अगर सपोजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो है 100 सपोजिंग, सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? 30.4. हाँ 130.4. 130, तो वही तो लिखा है बेटा 130.4 अपॉन दिस. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 100 हैं तो तुम्ही ने बताया कि न्यूट्रॉन्स का नंबर हो जाएगा 130.4. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स x है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? सी दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस और नॉट? यूनिटरी मेथड. Yes, ma'am. तो मैंने वही तो लगाया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय 130 डिवाइडेड बाय 100. यूनिटरी मेथड. इधर इलेक्ट्रॉन्स का है, इधर न्यूट्रॉन्स का नंबर है. देखो हुआ कि नहीं वैसे ही फॉर्मूला. नाउ डिड यू गेट इक्वेशन नंबर 2? बोलो. Ma'am, please explain. Sorry. Please explain again. See, it's just very simple. See, mass of proton and mass of neutron should be equal to 56. This is equation number 3. Yes, ma'am. ठीक है. Number of electrons will be 3 less than the number of protons because it is an ion with a +3 positive charge. Yes, ma'am. This becomes equation number 2. And number of neutron is 30.4% greater than the number of electrons. So that will become equation number 2. Yes, ma'am. So 3 equations, 3 unknown. Can you solve it?
3 equations, 3 unknown, number of neutrons, protons, and this thing, and you already know mass of proton and neutron is approximately 1 AMU. ये भी हमें पता है. So you can simply say number of protons and number of neutrons. तो अब देखो तीन unknown और 3 equation solve कर सकते हैं. बोलो बेटा, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? Yes, ma'am. So can you find the what is the atomic number of the element? 25.69. हाँ, जो भी आता है. हाँ, 26. What? मैम आयरन है. बेटा क्या बोल रहे हो? प्लीज बी लाउडर. मैम एटॉमिक नंबर इज 26. 26 किसका होता है? आयरन का हो गया. एंड चार्ज इसके ऊपर 3 है. ठीक है. अब दैट मींस नाउ आयरन आयन विल कंटेन 26 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ मेनी प्रोटॉन्स? सॉरी, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए. 26 में 3 देखो, ये 23 ये हो जाएंगे और 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 26 प्रोटॉन्स होंगे एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करो. 56 माइनस 26 करोगे तो कितना होगा? 30 न्यूट्रॉन्स. और देखो क्या ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 30.4% का डिफरेंस आ रहा है या नहीं, वो चेक कर लेना. कर पाओगे अब? कर पाओगे अब? Yes, ma'am. ठीक है. Shall we move to our old thing? Shall we move to our old thing? Yes, ma'am. तो हमने लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे कि that what energy levels or your orbits are divided further into what? मैम Energy levels or Orbitals. orbits are further divided into what? Or shells, you can call it as. Yes. मैम कैन यू वंस मोर एक्सप्लेन द प्रीवियस क्वेश्चन? बेटा अब तुम्हें बताओ इसमें डिफिकल्टी क्या आ रही है? ये तो 9th स्टैंडर्ड तक के बच्चे का है ना बेटा. देखो डिफिकल्टी क्या आ रही है. मुझे मास नंबर दिया हुआ है, which from where is the contribution of mass coming from? Protons and neutrons or not? यस मैम. उसकी that this means mass of this and this will be equal to this. This is equation number 1. एक Yes. इक्वेशन बनी, लेकिन 3 चीजें अननोन है. प्रोटॉन्स का भी नंबर नहीं पता, इलेक्ट्रॉन्स का भी नहीं पता, न्यूट्रॉन्स का भी नहीं पता. 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि नहीं? यस मैम. तो दूसरे के लिए रिलेशनशिप प्लस पॉजिटिव चार्ज बोल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का वैसे नंबर सेम होता है एटम में, लेकिन दिस इज एन आयन, सो वोंट दिस बी द सेकंड इक्वेशन? यस. एंड थर्ड इक्वेशन उन्होंने बोला 30% ज्यादा है. 30% ज्यादा का हमने इससे इक्वेशन बनाया. 3 इक्वेशन आई. अब सॉल्व कर सकते हो. 3 वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशंस हैं. कर सकते हो सॉल्व. मैथ्स रह गया अब तो. यस. ठीक है. चलो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं. दैट इज व्हाट वी वर डूइंग, क्वांटम नंबर्स. बट बिफोर टेलिंग यू अबाउट क्वांटम नंबर्स, आई टोल्ड यू देयर आर एनर्जी लेवल्स, और जिनको हम ऑर्बिट बोलते हैं. ऑर्बिट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू Subshells. how Subshells. many types of subshells you have? 4. Four. Yes, कौन से? SPDF. If L is equal to 0, it is called as S S. subshell. If L is equal to 1, it is called as P subshell. P subshell. Okay. Now, if L is equal to 2, it is called as C subshell. D. D subshell. अब क्यों है L is equal to 1, 2? ये तुम्हें आज की क्लास में समझ में आएगा. And if L is equal to 3, F it is subshell. called as F subshell. Very good. Now subshells are further divided. अब कौन सा subshell है उसको explain करने के लिए L quantum number use किया जाता है, which is azimuthal quantum. अब इनमें क्या है, मतलब हम सोसाइटी डिसाइड कर ली, फिर उसके बाद ब्लॉक डिसाइड कर लिया. ब्लॉक डिसाइड करने के बाद फ्लैट नंबर की जरूरत है ना. ब्लॉक डिसाइड करने के बाद फ्लैट नंबर की जरूरत है कि नहीं? Yes. So Yes. subshells are further divided into. Orbital. Yes, orbitals are denoted by which quantum number? M. Orbitals M, which is called as which type of quantum number? Magnetic quantum. Magnetic quantum number. How do you calculate the value of M? It depends on the value of L. M की जो वैल्यू है वो L की वैल्यू पे डिपेंड करती है. तो यहाँ पे देखो, it starts from -L goes to +L. So how many values of M you will get for any L quantum number? 2L plus 1.
यस तो टोटल देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ऐड कर दो तो 2l हो गई और एक जीरो वैल्यू इंक्लूड कर दो दैट विल बिकम 2l plus 1 so total number of orbitals present in s subshell will be how many number of orbitals in s subshell will be how many One. One. only one One. ठीक है अब एक ही घर है तुम्हारा तो उसका एड्रेस क्या होगा एक ही घर है तो कोई भी एड्रेस ना दे चलेगा Zero. ना Yes. यस अब L is equal to P का मतलब है कितने घर होंगे जरा देख के बताओ 3. Three. तीन घर होंगे तीन घरों में नंबर कैसे डालेंगे हम लोग Minus one. minus 1 0 1 0 1. देन अब D में कितने घर होंगे 5. 5 Five. 5 तो इनको नंबर minus कैसे 2 दें Minus 2 minus 1 0 1 2. 2 minus 1 0 1 and 2 and then F में कितने घर होंगे 7. 7. minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 5 6 so it will be what minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 and 3 ठीक है और एक घर में कितने रहते हैं Maximum 2 electrons. yes One so maximum. one orbital can accommodate maximum of 2 electrons तो s subshell में maximum कितने electrons रह सकते हैं 2. so p subshell में 6. p subshell में 10. 10. and f subshell में 40. 14. ठीक है can you follow till here yes Ma'am. अब प्रॉब्लम ये है कि S सबशेल को L इज इक्वल मतलब जीरो क्यों बोला गया ठीक है वो देखते हैं तो उसके लिए हमें क्या पढ़ने की जरूरत है वी शुड नो द शेप ऑफ द सबशेल तो हमने कौन कौन से सबशेल्स पढ़े हैं SPD. SPDF. तो PDF जो L क्वांटम नंबर होता है या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है इट टेल्स यू कि तुम्हारा जो सबशेल है ना वो कितने एक्सिस के अलोंग कितने डायमेंशंस के अलोंग एफिनिटिव है मतलब कितने डायरेक्शंस को एट अ टाइम प्यार करता है ऐसे समझ सकते हो तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L वैल्यू एंड L वैल्यू डिनोट्स कि कितने डायमेंशंस में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है या कितने डायरेक्शन से प्यार करता है कुछ इस तरीके से और जितने डायरेक्शन से वो प्यार करता है उसी के हिसाब से उसका शेप जो होता है वो गवर्न होता है तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू इफ आई एम टॉकिंग अबाउट S सबशेल तो S सबशेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है स्फेरिकल S सबशेल इज स्फेरिकल इन शेप नाउ स्फीयर कैसा होता है What is the shape of the sphere? ये x axis है, ये y axis है और ये supposing z axis है. तो sphere कुछ इस तरीके से बनेगा. yes So it will be affinitive along any axis. Do you think? जितना वो x axis के along Yes. जा रहा है, उतना ही वो y axis के along जा रहा है, उतना ही वो z axis. कुछ ऐसा नहीं है कि x axis के along ज्यादा रहना चाहता है या y axis के along ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है ना. So it has got no affinity with any axis. No affinity. और you can say इसके लिए सब कोई बराबर है ना x y z तीनों चीजें बराबर है. So no affinity with any axis. तो अब इसकी नो एफिनिटी है कोई एक्सफिनिटी नहीं है तो इसीलिए हम बोलते हैं इसकी एल वैल्यू क्या होती है 0 क्योंकि इसको किसी एक्सिस से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है. फाइन ये शायद अभी तुम्हें ना समझ में आए लेकिन जब मैं बाकी सबशेल्स का शेप बताऊंगी तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा. तो सपोजिंग नेक्स्ट आई गो फॉर पी सबशेल. अब मैंने तुम्हें बता दिया था पी सबशेल की एल वैल्यू तुम खुद से बताओ कितनी होती है. उल्टा चलते हैं. पी सबशेल 1. 1 means what? It will be affinitive along how many axes at a time? One axis at a time. One axis at a time. ठीक है. And हमें कैसे पता चला? Because इसका जो shape होता है it is dumbbell shape. ना डम्बल को तुम कैसे रख सकते हो मतलब अपनी घर का जिस रूम पे तुम बैठे हो ना उस रूम का कॉर्नर इमेजिन करो. देखो उस रूम का कॉर्नर इमेजिन करो फ्लोर पे. फ्लोर का कॉर्नर देख रहे हो सब लोग. Yes. Are you seeing? So see, Yes, ma'am. supposing I say this is x dimension, this is X is y dimension जो छत की तरफ जा रहा है और जो इस डायरेक्शन में आ रहा है this is the z dimension. Can I analyze like this?
Yes. See at the corner of the room. Now, how many Yes, ways sir. you can keep a dumbbell? Yes, you want to say something? There was some interruption. Please be louder. Can you please open the previous page? Yes, yes, I'll just open. Let me explain first. Okay. चला है? So अभी मुझे वापस उस पे जाना ही है. अब देखो एक डंबल को इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक डंबल है तो तुम इसको कैसे रख सकते हो? देखो, you can keep it along x axis like this. Yes, ma'am. Then Yes, ma'am. okay, then you can keep it, क्योंकि हमें एक ही एक्सेस, एक ही मतलब साइड के along हमेशा रखना है. Then you can keep it like this along the y axis at a time, Yes, ma'am. Yes, ma'am. and then you can keep it along the z axis at a time. तो देखो एक बारी में एक एक्सिस को प्यार करेगा. Yes. And how many varieties you are getting? How Three. many varieties? varieties. Three Three varieties. types. ठीक है. So p एक्स जो जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक एक्सिस के एफिनिटिव या एक एक्सिस से एक टाइम पे प्यार करने लगता है तो उसके पास तीन पॉसिबिलिटीज आती हैं. वो बना ले, वो मतलब अपने शेप को डंबल को कन्वर्ट कर ले. तो क्या हो सकता है? इट कैन मूव अलोंग दी एक्स एक्सिस. सो अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, यहाँ देखो एक ही टाइप का था इसलिए हम लोग सिर्फ एस बोलते थे, लेकिन यहाँ तीन टाइप के बनेंगे. देयर विल बी थ्री टाइप्स और नॉट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. तो अब इनको हमें कैसे डिफरेंशिएट करें कि हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाले का बात कर रहे हैं या वाई एक्सिस? तो हम लोग क्या करते हैं, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए वी राइट पी एक्स py, pz. y, and supposing your orbital is moving in the z direction, so you call it as pz. So how many p, मतलब p जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ट्रैजेक्टरी कितने डायरेक्शंस में जा सकती है? 3. So there will be three values. ओके, इसीलिए हम लोग बोलते थे तीन ऑर्बिटल है. अब समझ में आया क्यों बोलते थे तीन ऑर्बिटल है? एक घर px के लिए है, एक घर py के लिए और एक घर pz के लिए. अब समझा? Yes, Yes, ma'am. ठीक है. अब इसमें कोई फिक्स नहीं है कि px को 0 बोलना है, py को 0 बोलना है या pz को 0 बोलना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. बट एनसीईआरटी बुक शायद, क्योंकि और आईआईटी वाले ज्यादा एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं, तो वो लोग जनरली क्या करते हैं, px को 0 बोल देते हैं. ठीक है, जनरली वो लोग px को 0 बोल देते हैं. बट तुम किसी को भी बोल सकते हो क्योंकि ऐसा कुछ फिक्स नहीं लिखा है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और विल ऑलवेज बी एक्स एक्सिस. यू नो, इट इज जस्ट लाइक by convention we are calling this कि horizontal becomes x, vertical becomes y and this becomes z. but ऐसा कोई फिक्स है क्या? No, ma'am. ऐसा कोई चीज फिक्स नहीं है. ठीक है, तो इसलिए देखो, और अब क्योंकि हम नंबर्स के फ्रेम में अपने एड्रेस को लिखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज अल्फाबेट्स, दैट्स व्हाई वी राइट m is equal to -1, 0 and +1. तो अब समझ में आया p की वैल्यू 1 क्यों आई थी? Did you follow? p की वैल्यू 1 क्यों आई थी? क्योंकि वो एक एक्सिस से एक बार में एफिनिटिव होता है. ठीक है, और 1 आने से क्या हो जाता है, तीन तरीके के ऑर्बिटल्स बनते हैं. px मतलब इलेक्ट्रॉन तीन तरीके से रिवॉल्व कर सकता है, या तो px के लॉन्ग या py के लॉन्ग एंड pz के लॉन्ग. इसलिए हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स आए थे. Can you relate to this thing now? What we Yes, did Yes, over here? ma'am. Everything is related now. Can you relate? For Yes, s and t ma'am. now. Why s की l वैल्यू 0 है, अब समझ में आई? और Yes, स्फीयर पे रोटेट करना है तो एक ही तरीके से रोटेट कर सकते हैं, तो इसीलिए m की सिर्फ एक वैल्यू आई. एक घर है m के s सबशेल के पास. जब हमारी एफिनिटी एक एक्सिस की हो जाती है एक टाइम पर, तो हमारे पास तीन तरीके होते हैं रोटेट करने के लिए, px के लॉन्ग, py के लॉन्ग और pz के लॉन्ग. इसलिए हमारे पास तीन वैल्यूज आई. कैन यू रिलेट टू ऑल दिस नाउ? Yes, ma'am. शैल आई प्रोसीड फर्दर? Yes. अब डी सबशेल, क्योंकि अब थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर में आ जाता है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू. सो प्लीज. Double dumbbell shape. Yes. तो वो थोड़ा सा 3D में चला जाता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एक्सप्लेन करना, बट आई ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू एंड यू पीपल आल्सो ट्राई टू कंसंट्रेट टू द मैक्सिमम लिमिट. सो डी सबशेल. नाउ अब हमें क्या एफिनिटी दिखानी है? हमने एक बारी दिखाई नो एफिनिटी, देन आई शोड विद वन एक्सिस. तो अब इसको बढ़ाते जाओ. सीनियर इसका क्या हो जाएगा? इसका सीनियर क्या हो जाएगा?
डबल इसका डबल सीनियर क्या हो जाएगा? डबल डंबल. डबल डंबल मीन्स व्हाट? Double dumbbell means what? Affinitive towards how many axes at a time? 2. 2. 2 axes. Yes, affinitive. Affinitive means loving. Okay, towards 2 axes or 2 dimensions at a time. ठीक है? So what will be the value of L if we are affinitive towards 2 axes at a time? 2. 2. अब इसमें जो D सबशेल होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं. एक तो प्लेनर और एक नॉन प्लेनर. तो अब देखो जो हमारी स्क्रीन है वो कैसी है? जो ब्लैक बोर्ड है या स्क्रीन है वो कैसी है? प्लेनर है या नॉन प्लेनर? प्लेनर इज लाइक योर पेज. ओके, उसमें 2 डायमेंशंस होते हैं. तो टेल मी ये स्क्रीन कैसी है? प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? Planar. Planar. Yes. Yes, ma'am. ओके, तो चलो देखो अभी हम लोग पढ़ रहे थे डी ब्लॉक के लिए. तो डी ब्लॉक में देखो 2 डंबल्स आएंगे. तो 2 डंबल्स के जो डी ब्लॉक के जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं. एक तो प्लेनर वाले और एक नॉन प्लेनर वाले. अब प्लेनर वाले क्या होते हैं? जैसे जो प्लेन में लाई करे, जैसे ये स्क्रीन है तो स्क्रीन में जैसे तुम बनाते हो ना, एक एक्स डायमेंशन बनाते हो और एक वाई डायमेंशन बनाते हो. जेड डायमेंशन को तुम स्क्रीन पे नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं ना. No. ठीक है, तो ये कैसे हुए? 2 डायमेंशंस हुए. तो कुछ जो ऑर्बिटल्स होते हैं, कुछ जो डी सबशेल होते हैं, मतलब हमें 2 डंबल्स बनाने हैं. तो वो क्या हो सकते हैं? दे कैन गो इन 2 ways. आइदर दे कैन गो इन 2 डायमेंशन. ओके, दे कैन गो इन 2 डायमेंशंस. तो 2 डायमेंशन जैसे तुमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, तो ये प्लेन कौन सा कहलाएगा? इफ आई एम ओनली मेकिंग एन एक्स एक्सिस एंड अ वाई एक्सिस, तो ये कौन सा प्लेन कहलाएगा? बोलो. XY plane. XY प्लेन. तो 2 डंबल्स कैसे प्लेस कर सकते हैं हम लोग? मतलब देखो ये तुम्हारी दीवार है ना, ये देखो 3 दीवारें तुम्हें दिख रही हैं. फिर से अपने रूम के कॉर्नर पे देखो, अपने रूम के कॉर्नर पे देखो. चलो रूफ पे देख लो. तो रूफ पे तुम देख रहे होगे तो तुम्हें 3 ऐसे दीवारें जाते हुए दिख रही हैं. Yes. Check it out. Yes, Now ma'am. supposing I am calling जो हमारे राइट साइड में जा रही है ना, उसको I am calling it as x axis. जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको I am calling it as y axis. और जो ऐसे जा रहा है लेंथ वाइज I am calling it as z axis. See x y z 3 प्लेन्स हुए, Yes. 3 डायमेंशन हुए, Yes, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट. सो ये जो दीवार है, जो ये एक्स वाई के जो तुम्हारे बिल्कुल सामने की तरफ आ रही है, ये कौन सी दीवार हो गई? इजंट इट एक्स वाई प्लेन? Yes. Yes, ma'am. इसमें z डायमेंशन एब्सेंट है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट नहीं है. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जो तुम्हारे लेफ्ट साइड की दीवार है इस कॉर्नर पे, इसको कौन सा प्लेन बोलेंगे? देखो इसमें लेंथ है और Y हाइट Z. है. So this will become YZ. my YZ plane. Very good. That means you are following now. और जो हमारा रूफ है, वो कौन सा प्लेन हो जाएगा? XZ. XZ. XZ plane. वेरी गुड. तो अब 2 डंबल्स को अगर हम ऐसे रख दें, इस दीवार से चिपका के रख दें, ठीक है, दैट मींस दे आर लाइंग इन दी एक्स वाई प्लेन ओनली. ऐसे 2 डंबल्स रखने थे, 2 डंबल्स को हमने ऐसे रख दिया. तो इनको क्या कहेंगे हम लोग? डी एक्स वाई. व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर? डी मींस ये डी सबशेल की बात हो रही है और एक्स वाई मतलब इट इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन. कैन यू फॉलो दिस? कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. एंड सी ये कहाँ नहीं पढ़ रहा है, ये सिर्फ कहाँ लाई कर रहा है? इट इज लाइंग ओनली इन एक्स वाई प्लेन एंड इट इज नॉट लाइंग इन, इट इज एब्सेंट इन व्हिच प्लेन्स? Z. Z plane. Z. इट लाइज इन एक्स वाई प्लेन. देखो सिर्फ सामने की दीवार पे दिख रहा है ना, रूफ पे जा रहा है ना, एब्सेंट इन YZ plane and ZX plane. See, isn't it absent? Yes, Yes. ma'am. कोई पेंटिंग ली और तुमने इस दीवार पे चिपका दी, तो ये इस दीवार पे और इस दीवार से कोई फर्क नहीं है ना उसको. No, ma'am. No, ठीक है? ma'am. तो सिमिलरली अब देखो डी एक्स वाई मैंने तुम्हें समझाया. तुम मुझे और बताओ कैसे बन सकते हैं डी सबशेल्स? व्हाट कैन बी द अदर वैरायटीज? नथिंग DYZ. DYZ. XZ. DYZ, अब देखो DXZ. मेरे लिए रोटेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम समझ लो, ठीक है. तो अब रोटेट तो मैं कर नहीं सकती. तो ये सपोजिंग वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, मतलब इधर हमने पेंटिंग चिपका दी है. तो इधर हम पेंटिंग चिपका देते हैं, तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया. तो अब इसका नाम क्या लिखें?
DYZ. 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 What does this stand for? It is lying along how many planes? 2. 2. Lies, no, 2 axes, but only one plane. It lies along only YZ plane ना? Yes. Plane मतलब दीवार. किस दीवार के along है? Y. Yes, but it is absent along X. which are planes? X. X, Y, and XZ. XZ. Can you follow? Yes, ma'am. ठीक है. And फिर और कौन सी possibility है बताओ? और कौन सी DXZ. यस तो सपोजिंग अब मेरे लिए तो देखो रोटेट करना पॉसिबल नहीं है लेकिन तुम समझ जाओ दिस इज DXZ तो यहाँ पर ऐसे लाई कर सकता है और फिर से यहाँ पे इसको नाम क्या दें DXZ. DXZ. नाउ टेल मी योरसेल्फ इट विल लाई अलोंग XZ plane. XZ plane. यस इट विल लाई इन दी XZ प्लेन मतलब ये रूफ पे हो जाएगा और बाकी दोनों दीवार पे इनका कोई Absent. यस कैन यू फॉलो नाउ Yes, Yes, ma'am. ma'am. absent along XY and YZ. ओके अब देखो ये तुम्हें दिख रहा है ना ये दो एक्सिस के अलोंग एफिनिटिव है इसीलिए L का वैल्यू 2 है Yes. ठीक है Yes. अब देखो क्या हो सकता है ये तो टू डायमेंशनली वाले हो गए अब कभी कभी क्या हो सकता है ऐसे भी हो सकते हैं जो तीनों डायमेंशंस में जा रहे हैं तीनों डायमेंशंस में भी जा रहे हो तो वो 3 डायमेंशनली ओरिएंटेड डी सबशेल्स दो तरीके के डी सबशेल्स होते हैं एक तो 2 डायमेंशन वाले और एक 3 डायमेंशन वाले तो 3 डायमेंशन वाले कैसे होते हैं जैसे कि ये मेरा XY प्लेन है ये मेरा XY प्लेन है तो हमने क्या किया अभी तक हम कहाँ रख रहे थे अपने डंबल्स को वेयर वर यू कीपिंग द डंबल्स इन बिटवीन द एक्सिस और अलोंग द एक्सिस वेयर वर यू कीप Along the Along the axis. axis. इन बिटवीन द एक्सिस देखो फिर से isn't it along between the x axis and z axis along the axis तो ये होता है देखो along मतलब साथ में चलना so see this is along the x axis along preposition होता है can you understand Yes. Yes, ma'am. along मतलब Yes, साथ ma'am. में चलना तो क्या यहाँ पे ये लोग साथ में चल रहे हैं या मिडिल में चल रहे हैं एक्सिस के Middle. Middle. Between. which type in between the axis but now another variety can we make by putting along the axis see we have to place 2 dumbbells can I place them along the axis check Yes, करो ठीक है अब इसको क्या बोलें can I call it as DXY shall I call it as DXY or is it different from DXY I'm different. Different. डिफरेंट है तो डिफरेंट का मतलब क्या हो गया इसको नया नाम देना पड़ेगा ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि अलोंग द Yes. एक्सिस है या इन बिटवीन द एक्सिस है तो इसको नया नाम दिया गया क्या नाम दिया गया DX² Y² कैन यू फॉलो दिस Yes, ma'am. क्यों Yes. नया नाम दिया गया DX² Y² because it is coming along the axis till now we were doing in between the axis can you follow Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिमिलरली अब हमने XY के अलोंग रख दिया ठीक है तो हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि हम क्या करें एक और डंबल लें उसको ऐसे रख दें Y एक्सिस के अलोंग और Z एक्सिस कहाँ होगा Z एक्सिस कहाँ होगा देखो स्क्रीन के बाहर तुम्हारे पेपर के बाहर और पेपर के अंदर यही तो Z एक्सिस होगा Yes, ma'am. रूम Yes, वाला ma'am. इमेजिन Yes, करो ma'am. Z एक्सिस Yes, कैसे आ रहा है मतलब जो सामने तुम्हें वॉल दिख रही है उसको XY प्लेन मान लो तो Z एक्सिस प्लेन किधर जा रहा है वॉल के बाहर और वॉल के अंदर Yes. Yes, ma'am. ठीक है ma'am. तो एक डंबल हम लोग को कैसे रखेंगे यहाँ सपोजिंग Z एक्सिस है तो एक मतलब इधर एक वैसे जा रहा है तो अच्छा अब मुझे बताओ जैसे मैं तुमको एक तरीके से समझा रही हूँ सो जैसे तुमने हॉलीडे कैब देखी है तो हॉलीडे कैब को अगर तुम ऐसे सामने से देखोगे तो तुम्हें कैसे दिखेगी ऐसे दिखेगी और ऊपर से ये ऐसे दिखेगा फ्रंट व्यू देखो ऐसे दिखेगी कैप अरे तुमने Yes, ma'am. पीरियोडिकल मूवीज देखी होंगी ना तो इंग्लिश मूवीज में ऐसे कैप लगाते हैं जो पीपल तो फ्रंट व्यू विल बी लाइक दिस और नॉट Yes, ma'am. Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. बट अगर कोई बर्ड है वो ऊपर से जा रही है तो उसको क्या दिखेगा उसको ऊपर से क्या दिखेगा ये एक गोला दिखेगा और एक बाहर का गोला दिखेगा सी
Yes, Top view ma'am. will be like this or not? Check it out. For Yes. a cap, front view and the top view will be like this or not? Or you can say Yes, ma'am. size hat. This is not a cap, it is a hat. Will it be like this or not? Yes. So Yes. see, the Z axis is going मतलब स्क्रीन के बाहर और स्क्रीन के अंदर. तो जैसे अपना पेन का देखो, पेन का टिप देखोगे तो क्या दिख रहा होगा? पेन का टिप देखो जरा. Circle. Only circle. Are you able to check it? See on the screen. See, this is your side view and this is like ये देखो अभी ये y है और अगर इसको मैंने z axis बना दिया तो देखो स्क्रीन पर सिर्फ तुमको ये सर्कल दिखेगा या नहीं दिखेगा? Yes, ma'am. समझ Yes, में आई ma'am. मेरी बात? ये y है और z ऐसे है तो z का अपने को सिर्फ क्या पार्ट दिखेगा? z का अपने को सिर्फ क्या पार्ट दिखेगा? सिर्फ Front part. सर्कल वाला पार्ट दिखेगा या नहीं? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब Z जो है ना हमारा वो स्क्रीन के अंदर बाहर है, तो स्क्रीन के अंदर बाहर होने की वजह से हमें क्या दिखेगा? सिर्फ उसका ये वाला पार्ट ऐसे. ठीक है, एंड इट इज अलोंग द एक्सिस और इन बिटवीन द एक्सिस? Along the axis. Yes, it is also along the y and the z axis. तो इसको नया नाम देना पड़ा, तो इसको कैसा नाम दिया गया? dz square. So how many type of values or how many types in how many ways the electron can rotate in 2 dimensions or 2 axes? कितने तरीके हो गए? 3. 3. कैसे बेटा 3? एक तो ये हो गया प्लेनर में 3 तरीके हो गए और नॉन प्लेनर में 3 डायमेंशन में 2 तरीके हो गए. तो टोटल कितने वेज हो गए? 5. Total ways is 5 and that's why how many values of m you get? 5. How many values of m you will 5. get? m values for L is equal to 2. L is equal to 2 किसका होता है? D cell. L is D equal subshell. to क्यों होता है? Why? Why? क्यों L is equal to 2 है for D subshell? Why L is equal to 2 for D subshell बेटा? Affinity to 2 axes. Yes, 2 axes at a time. L shows affinity towards how many axes? Okay, definition में लिखवाती हूँ अभी तुमको, क्योंकि अब मैंने समझा दिया तो जब definition लिखाऊंगी, I think you will follow each and every word. You'll follow each and every word. तो Yes, अब ma'am. देखो इसको हमें ऐसे लिखना है. तो देखो इसीलिए हम लोग 5 घर बनाते थे इसके. 5 घर क्यों बनाते थे? क्योंकि एक घर किसके लिए है? dxy के लिए, एक किसके लिए? dyz के लिए, एक किसके लिए? dzx के लिए, एक किसके लिए? dx square y square के लिए और एक किसके लिए? dz square के लिए. तब देखा 5 घर क्यों बनाते थे? Yes. Can you get it? Yes, ma'am. बट हम लोग जब नंबर्स की बात करेंगे तो हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? -2, -1, 0, 1 एंड 2. कैन यू गेट इट? मैम Yes, हाँ. ma'am. मैम 3 डायमेंशनल केस में और केसेस भी तो बन सकते हैं जैसे. नहीं बन सकते, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो ना कि एक x में और एक z में जाएगा, वो सेम चीज ही रहेगी. जो हम लोग dx स्क्वायर और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही बनेगा वो. ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हम 3 डायमेंशन चीजों में नहीं बता पाते. हम पेन एंड पेपर पर बताते हैं, पेन एंड पेपर 2 डायमेंशन चीजों पे तो समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट लेटर ऑन व्हेन यू विल स्टडी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यू विल योरसेल्फ कम टू रियलाइज कि जब 3 चॉइसेस होती है, मतलब 3 डायमेंशंस होते हैं और 2 डायमेंशन एट अ टाइम कवर कर रहे होते हैं, तो हम नंबर ऑफ केसेस 2 ही बनते हैं. ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी या फिर पीएनसी में, मैथ्स में तुम्हें कराया जाएगा इस टाइप की चीजें. तो 2 ही केसेस बनते हैं. अगर तीसरा बन रहा होता, जो तुम सोच रहे हो कि एक एक्स डायरेक्शन में जा रहा होता और एक जेड डायरेक्शन में जा रहा होता, तो वो नहीं बनता. क्योंकि देखो ये जब हम डंबल को रखेंगे, ठीक है, तो डंबल को जब हम रखेंगे तो डंबल ऐसे जाएगा. मतलब ये तो मैंने ऐसे बनाया है, लेकिन देखो ये इसका कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी जा रहा होगा या नहीं? सी इफ आई प्लेस just like I told you about a pen. ठीक है, अगर तुम एक पेन को y एक्सिस के अलॉन्ग रख दोगे तो कुछ इसकी मतलब उठा हुआ पार्ट होगा या नहीं होगा? इसका जो रोटेशन, जो गोल वाला पार्ट है, वो थोड़ा सा x एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है या नहीं जा रहा है? देखो
Yes, ma'am. Yes, So isn't ma'am. it going along the x-axis also? Similarly, see over here, इसका भी जो उठा हुआ part है, is it in going along the z-axis also? Yes, ma'am. तो Yes, इसलिए ma'am. इसलिए वो जो तुम थर्ड केस सोच रहे हो ना, वो नहीं बन पा रहा है, समझा अभी? Yes, ma'am. अगर बनता तो हम लोग कर रहे होते. फाइन ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई, शेप्स क्लियर हुए. Yes, ma'am. तो इसीलिए तो Yes, देखो ma'am. मैंने यहाँ नहीं लिखा है इट इज एब्सेंट अलोंग दिस एंड दिस प्लेन. व्हाई? बिकॉज इट इज लाइंग अलोंग ऑल दी प्लेन. देखो एक्स वाई प्लेन में भी लाई कर रहा है, उठा वाला पार्ट वाई जेड प्लेन में भी लाई कर रहा होगा, और जेड एक्स प्लेन में भी लाई कर रहा होगा. लिखवाया कहीं? वी डिड नॉट राइट ना? No. ठीक है, व्हाई वी डिड नॉट राइट? डिड यू फॉलो नाउ? Yes. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो अगर px की बात करी जाए तो px कहाँ एब्सेंट होगा? px जो होगा वो कहाँ, इसमें भी देखो ऐसे उठा उठा पार्ट आएगा पेन की तरह. देयर विल बी some openings. So where it will be absent? जहाँ x axis ना आती हो. कहाँ x axis नहीं आती है? YZ. Yes, so it will px orbital is absent along yz plane. Similarly, py will be absent along which plane? Exact. XZ. Yes, it will be absent along xz plane. लेकिन s सबशेल कहीं absent हो सकता है क्या? It will lie along sphere. तो हर एक plane में होता है ना? All plane. ठीक है, उसी तरीके से dx square y square अगर इसका तुम ऐसे ऊपर वाला पार्ट इमेजिन करोगे तो वो z प्लेन में भी लाई करता है, इसीलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं. कैन यू फॉलो दैट? ये दीवार पे चिपका हुआ है, तभी मैंने तुमको पेंटिंग की तरह समझाया. ये दीवार पे चिपका नहीं है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तभी 3 डायमेंशन लिखा है. ओके, Yes. did you get the Yes. difference? Fine. So similarly, देखो अब देखो तुम्हें खुद समझ में आ गया होगा. जब हमने डी सबशेल को एक्सप्लेन करना चाहा तो मैंने पहले ही बोला था थोड़ा डिफिकल्ट है करना, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन. सो हैव आई सक्सीडेड इन एक्सप्लेनिंग यू इट टू यू, और स्टिल इज देयर लाइक प्रॉब्लम लग रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीजें बुक्स में थ्योरी में नहीं लिख के दी जा सकती हैं. मैम आ गया समझ में। समझ में आ गया? वेरी गुड इनफ. क्योंकि बहुत डिफिकल्टी मैम, आती है. जो हाँ. 3D मैम 3D में हम लोग ने x स्क्वायर y स्क्वायर लिया, ये x स्क्वायर z स्क्वायर भी हो सकता था, बस एक स्टैंडर्ड हाँ कन्वेंशन ले हाँ, लिया क्योंकि हम लोग जनरली एक्स वाई प्लेन लेते हैं ना, इसकी वजह से. है. ओके मैम. ठीक है, सो और z को जनरली हम आउटसाइड द स्क्रीन एंड इनसाइड द स्क्रीन मानते हैं ना, इसलिए ऐसे. ठीक है, जस्ट बिकॉज Okay, ऑफ द ma'am. कॉमन कन्वेंशन. अब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैं dxy को -2 भी बोल सकती हूँ, इसको भी बोल सकती हूँ, बट अगर हमें बहुत प्रिसाइजली फॉलो करना है तो सॉरी, हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, और एनसीईआरटी dz² को शायद 0 बोलता है, बट इसका कोई फिक्स रूल नहीं है. ठीक है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि dz² को 0 ही बोलना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस ही रहेगी, ये भी कोई रूल नहीं है ना. डिड यू फॉलो दैट? ठीक है, तो अब देखो f सब शेल कितने एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होगा? टेल मी योरसेल्फ. f सब शेल will be affinitive along how many axes at a time? 3. 3. Affinitive along sorry, 3 axes at a time. 3 axes at a time. ठीक है, एंड दैट इज द रीजन इसका L वैल्यू क्या बोला जाता है? 3. इसका जो शेप होता है ट्रिपल डंबल. ठीक है, अब देखो डबल डंबल को एक्सप्लेन करने में इतनी डिफिकल्टी आई, तो ट्रिपल डंबल को अगर एक्सप्लेन करेंगे और मेरे पास 3D में एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, डोंट यू थिंक इट विल बी वेरी टीडियस? Yes. तो इसलिए Yes, आईआईटी ma'am. ने इसको सिलेबस में नहीं इंक्लूड किया गया है. इसको सिंपल बोला जाता है, इसका शेप जो है वो कॉम्प्लेक्स है, हम नहीं डिस्कस करेंगे. बट अभी हमने देखा जब 3 एक्सिस जब 2 एक्सिस होती थी तो 5 शेप आते थे, 5 वेज आते थे, तो 3 होंगे तो कितने वेज आएंगे? 7. 7. So Seven. values, number of values will be 7, or you can say number of orbitals will be 7. And how will you name them? -3, -2, -1, 0, +1, 2, 3. Can you follow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Will be -3 से start होगा, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. So you can check 7 values are there. Is it fine? Yes.
तो हम लोग इसको नहीं कर दें। कुछ बुक्स में भले ही तुमको मिल जाएगा XYZ, XY, XZ ऐसे करके लिखा हुआ, बट हम लोगों को इसके आगे नहीं करना है। इज इट फाइन टिल हियर? डी सबशेल तक का जो शेप है वो इम्पोर्टेंट होता है, एफ के लिए नहीं, सिलेबस का पार्ट नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। ओके, डिड यू फॉलो टिल हियर? Yes, ma'am. अच्छा, अब से ना डाउट के साथ अपना नाम भी लिख के देना। जब भी तुम व्हाट्सएप पे डाउट के लिए भेजोगे ना, तो अपना नाम भी लिख के देना, सो दैट बिकॉज नाउ आई डोंट नो कब तक हम लोग वर्चुअली कनेक्टेड रहेंगे, तो एटलीस्ट हमें नाम पता होगा तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी ज़्यादा बेटर बन पाएगी। थोड़ा मेरे को भी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होगी, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा चलो अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो I want you to connect with you people. So now it's almost a month or more since we have been studying, but still I don't know many of your names. Okay, इसलिए whenever you ask a doubt, can you put your name also along with it? Yes, ma'am. I will try to put your names also. And so I can just track your progress. Okay, so that's the reason I want your names also. So we can work accordingly. कहाँ किसी कौन थोड़ा लो जा रहा है, जिसको मोटिवेशन की जरूरत है, ये सब चीजों के लिए. So just try to put your names along with it. So did you follow till here? एड्रेस Yes, हमारे ma'am. कैसे बन रहे थे और हम कैसे लोगों को घर दे रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली. Yes. ओके, सो लेट अस राइट द डेफिनेशंस. तो अभी किसके किसके स्कूल के एग्जाम्स रह रहे हैं, जिनके जिनके भी रह रहे हैं वो लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, अजीमुथल क्या होता है, उसको उसकी डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लें. ठीक है, क्योंकि वो 1 मार्कर या 2 मार्कर्स में दे कैन आस्क यू कि डिफाइन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सो एंड लाइक दैट. राइट, और जिन्होंने दे रखे होंगे शायद उनके में आया भी होगा इस टाइप का क्वेश्चन. आया था क्या? Did you come across such type of question? नहीं No. आया था. चलो, okay, well enough. So, but we will do the this part. So Excuse me, first- ma'am. Yes. Ma'am, like in the exams which are upcoming in our school, redox reaction is also coming. So, beta, you will have to wait for that, or otherwise I have I'm told you. asking that in your YouTube channel, the videos are available for redox reaction. Yes, they are available. Class 10 playlist में जाना है. Chemical reactions and equations पर 6th, 7th या 8th जो भी लास्ट की 2-3 क्लासेस होंगी ना, वहाँ पे या 4 क्लासेस होंगी, वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर और रिडॉक्स के बारे में डिस्कस किया है. मतलब रिडॉक्स तो पहले से किया हुआ है, बट वो क्लासिकल अप्रोच है जो तुमने 10th में की थी, वो वाली भी डिस्कस की गई है और उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले गए. And that's why last year we recorded, because last year also we faced this problem कि किसी स्कूल का कुछ सिलेबस है, किसी स्कूल का कुछ सिलेबस है, तो वो ट्रबल फिर से तुम लोग को ना है, इसलिए हमने पहले ही रिकॉर्ड करके रख दिया. अभी पता चल गया? Okay, Class ma'am. 10 Thank you, ma'am. प्लेलिस्ट में जाना है, एंड वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस 1, 2, 3 ऐसे करके पढ़ा होगा, एंड वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर वाला तुमको मिल जाएगा. तो उसमें बैलेंसिंग भी है. Okay, ma'am. Thank you. You can go through it, and कुछ रह जाएगा then we can help it out. Okay, fine. So और माइट भी पॉसिबल अभी हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश होने वाला, और एग्जामिनेशन अगर थोड़े डिले हुए तो रीडॉक्स करवा भी सकते हैं. बोथ द केसेस वी आर सीइंग दिस थिंग आल्सो. प्लीज, अगर तुम लोगों को तुम्हारा पीरियोडिक असेसमेंट कब होगा? फर्स्ट होता है ना, सितंबर में होगा शायद. Am I wrong? मैम हाफ ऑफ अगस्त से. हम सितंबर. ठीक है, हाँ, मतलब समवेयर First वही of डेट्स it. होती है. तो उसमें कुछ टीचर्स ने तुम्हें सिलेबस बताया है किसी स्कूल में कि कितना आएगा? No, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. कितना बताया तुम्हें? जिसके स्कूल में बता दिया गया बता दो. Generals, chemical bonding, periodic table, and atomic structure. ओके, तो एटॉमिक तो हो रहा है, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग हम कर लेंगे. तो ऐसे ही तुम लोग अपने स्कूल का सिलेबस अगर हमें शेयर कर दोगे तो वी विल ट्राई टू कवर. आई एम नॉट सेइंग कि हर एक का कवर कर पाएंगे, वी विल ट्राई टू कवर टू द मैक्सिमम लिमिट, जितना कर सकते हैं. एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी विल हैव वन मोर एक्स्ट्रा क्लास इन द नेम ऑफ KVPY.
ठीक है। KVPY में एक तरीके से पूरा 11th का सिलेबस आता है। तो अगर तुम मुझे पहले से प्री इन्फॉर्म करके रखोगे कि मेरा स्कूल में ये सिलेबस आ रहा है और मेरे दिमाग में रहेगा कि ठीक है अगस्त तक मुझे फिनिश कराना, सी पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग तो हर हाल में अगस्त तक हो ही जाएगा। तो जिनको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो क्लास भी फॉलो करेंगे तो उनका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उनको टेंशन एक्स्ट्रा लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जिनका जैसे रीडॉक्स आ रहा है या कुछ और आ रहा है, तो उसके लिए जो KVPY के नाम पर एक्स्ट्रा क्लास लग रही है ना, उसमें इतना करवा देंगे कि तुम स्कूल में स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, अभी मतलब डिस्कशन हुआ है, तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड संडे या किसी एक डे पे KVPY के नाम पर एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। उसमें स्कूल लेवल का कोई भी एक्स्ट्रा चैप्टर जो भी होगा वो हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। मतलब इतना एक्सटेंसिव नहीं पढ़ेंगे, जैसे टॉपिक तुमने देखा होगा स्कूल लेवल से बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं हम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस मैम। Yes. Yes, ma'am. ये तो IIT लेवल का है, फाइन। एंड उसमें भी हम मेंस पे भी नहीं छोड़ रहे हैं, हम एडवांस तक कवर, वो सब कुछ कवर कर रहे हैं। तो हम इतना एक्सपेंसिव नहीं पढ़ा करेंगे, बट इतना पढ़ लेंगे कि स्कूल या KVPY के लिए सेटिस्फैक्टरीली हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो इफ यूल कीप ऑन टेलिंग मी, जैसे नाउ फॉर योर बैच आई कीप इन माइंड कि आई हैव टू डू विद रीडॉक्स, तो हम हो सकता है नेक्स्ट जब हमारी संडे को या जब भी क्लास लगेगी KVPY के नाम की, तो हम लोग रीडॉक्स ही कर लेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो जिनका स्कूल में आ रहा है उनको बेनिफिट हो जाएगा। Okay, thank you. So but it's same thing, like you will have to tell me, then only I'll come to know. If you'll keep yourself mum, how will I come to know कि भाई ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। हम तो यही समझेंगे ना सब स्मूथली चल रहा है, and since we are not connected in real life, so it is a big trouble. So you have to tell me via WhatsApp. So see now how we वहाँ पर क्या होता था, जब हमारी रियल में क्लासेस होती थी तो बच्चे आ जाते थे, हमें बता देते थे ये सो एंड प्रॉब्लम थी, तो वो दिख जाता था। अब यहाँ पे कैसे पता चलता है, बाय नंबर ऑफ WhatsApp मैसेजेस आई एम गेटिंग अबाउट द टॉपिक। हाउ शुड आई डिसाइड फर्दर, द होल thing and whole planning governs on for a particular problem the number of WhatsApp messages. If you are giving only one message one student, that means ठीक है उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है देख लेंगे। बट अगर बहुत सारे लमसम में आ जाते हैं तो समझ आता है हाँ ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, वी हैव टू टेक केयर वेरी सीरियसली। Okay, so you have to share your troubles, okay, and see, consider your teachers like in this stage as your friends, because you're not meeting us in real, इसलिए शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम फील कर सकते हो, बट प्लीज एटलीस्ट यहाँ के टीचर्स को अपना एज एन फ्रेंड गाइड जब समझना चाहते हो उस वे में ट्रीट करो। दिस इज नॉट लाइक योर स्कूल वाला थिंग, मतलब रिस्पेक्ट दो, आई एम नॉट सेइंग दैट वे, बट consider them to be your guide or something, and discuss each and every type of problem you are facing, whether it is psychological, emotional, because you are in a teenage, you go through a lot of things, there is a lot of pressure going around you. So please consider your teachers as your friends or something, and do share your problems, क्योंकि मतलब do it, share with your parents or share it with your teachers, but with us we have a positive thing, क्योंकि अभी ये बोल सकते हो 6-7 सालों से हम तुम्हारे एज ग्रुप के बच्चों से ज़्यादा इंटरफेस में आ रहे हैं। हर साल 300 से 500 बच्चों के बीच में हम लोग होते हैं, तुमसे 2-3 साल छोटे, तुमसे 2-3 साल बड़े, तो हमें शायद तुम्हारी साइकोलॉजी ज़्यादा बेटर समझ में आती है, या तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन हिट एंड ट्रायल कर करके हमने पहले ही निकाल के रखा होता है। तो तुम हमें बताओगे अपनी प्रॉब्लम, हम तुम्हें सॉल्यूशन बताएंगे। इफ यू शेयर इट विद योर भैया दीदी और sibling, elder sibling, or somewhere who you admire and he is also a student, or with your parents, तो parents क्या करेंगे ना, वो अपने टाइम का ज्ञान देंगे। It's not wrong, I'm not saying it's wrong, but मतलब ठीक है वो एक डिफरेंट पीरियड था और एक डिफरेंट पीरियड था, पेपर सब्जेक्टिव होता था अब ऑब्जेक्टिव होता था, पहले पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था कम ट्रिकी होता था, अब ट्रिकी है। एक तुमने देखा है कल की क्लास में देख लिया होगा, लगाने से ही क्वेश्चन में कितना बड़ा चेंज आ जाता है। तो नाउ वी हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन ऑल दीज स्मॉल वर्ड्स एंड दिस, सो मे बी व्हेन दे विल शेयर their experiences, it may not work out in your case, okay, it may not work out in your case because वो सिर्फ एक पर्सन का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, that is their themselves, okay, and that too there might be a periodical difference as well, but जब तुम हमारे जैसे लोगों से या जो इस फील्ड में हैं उनसे शेयर करोगे तो वो तुम्हारे एज ग्रुप के 500 लोगों से इंटरफेस कर रहे हैं, मिल रहे हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग योर साइकोलॉजिकली, तुम किस चीज़ से
go through हो रहे हो, हम शायद better समझ पाएंगे, because we are going through you like same type of people every year repeatedly. So, and we are going through this examination process every year repeatedly. So we know the drawbacks, we know your shortcomings, like we can analyze your problems very well. That is my thought process. Maybe I'm wrong, but that is my thought process. So कुछ भी मतलब even I'll say जिसके साथ भी comfortable हो PCM में, फिजिक्स सर के साथ, मैथ सर के साथ, मेरे साथ, या इवन जो तुम्हें नहीं भी पढ़ा रहे हैं उनके साथ, जिससे भी कंफर्टेबल हो इस फील्ड में, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो. दे विल गाइड यू बेटर एज कंपेयर टू अदर पीपल. ठीक है, तुम्हारे भैया दीदी या समथिंग, वो अपने फ्रेंड का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. तो दे हैव मेट ओनली 5 to 10 people, but we are meeting 500 people, so you can check the efficiency we are having as compared to them. So I am free for all type of your problems. You are not able to concentrate, मेरा टाइम टेबल बना के दे दो, मुझे ये कर दो, मतलब I am free for all that things. Any kind of help you need, you totally can have it from me. Like today you discussed मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो तुमको दो तरीके का सॉल्यूशन मैंने बताया. एक तो रिकॉर्डेड पढ़ाई है, उससे देख लो, प्लस फ्यूचर में जो प्लानिंग हमने अभी डिसाइड करी है, ताकि एग्जाम्स के लिए भी हेल्प हो जाए और KVPY की प्रिपरेशन भी हो जाए, डुअल पर्पस सॉल्व हो जाए, तुम उसमें भी हेल्प ले सकते हो. डिड यू गेट माय पॉइंट ओवरऑल? Yes, ma'am. ठीक है, तो डोंट कीप योर प्रॉब्लम, क्योंकि तुम 3 दिन उसमें बर्बाद करोगे ना, उससे बेटर है हमसे सॉल्यूशन लो और सीधे सीधे काम करो, मेहनत करो. ठीक है, उस पर टारगेट लो. तो अभी तो मैंने सिर्फ तुमको ओवरव्यू में एक्सप्लेन किया है. अगर थ्योरी में लिखने को आता है तो कैसे लिखोगे, तो उसके लिए विल गो विद द प्रॉपर डेफिनेशंस. सो क्वांटम नंबर्स, फर्स्ट डेफिनेशन. Okay, so what is it? So it represents the set of 4 numbers required to define an electron in an atom. Okay, in an atom. Okay, so there are 4 types of quantum numbers, जो कि जिसमें से 3 किसकी वजह से आए हैं? Schrodinger's equation. Yes, they are the solution of Schrodinger's wave equation. So there is principal quantum number. So what does principal quantum number denotes? It tells you the size, or you can say total energy of the electron. और basically rough language में बोले total energy किससे define होती है? The orbit of the electron. ठीक है, so it can have what values? क्या values हो सकती हैं? Integral values होंगी ना, 1 2 1, 2, 3 4. You have already done this, and which is denoting what? They are denoting K, L, M, N, shell, and so. ठीक है, can you follow this? Yes. Now अब एक शेल के अंदर या फिर एक इसके अंदर कितने सबशेल्स होंगे, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? सो नंबर ऑफ सबशेल्स in any kind of nth shell is given by the number n. मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें एक शेल सबशेल होगा, सेकंड ऑर्बिट है तो उसमें 2 सबशेल होंगे, थर्ड ऑर्बिट है तो उसमें 3 सबशेल्स होंगे, एंड सो ऑन. लाइक वी हैव ऑलरेडी डन इट. लाइक इफ आई डू के शेल का मतलब n की वैल्यू क्या होंगी? 1. 1. So how One. many subshells? How many subshells? 1 subshell, and that will be which one? S subshell. Do you Yes. remember this? Then similarly L की बात करोगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. So 2 means how many subshells? We did yesterday. 2 2s to p. subshells. You remember? Yes. 2 subshells. Okay. Similarly n is equal to 3 हो जाए तो how many subshells now? 3. How many subshells? Yes. So this will be 3 subshells. Can you follow? Yes, ma'am. And if n is equal to 4, then
4 4 subshells. Four subshells. subshells. 4 subshells. कौन कौन से होंगे बताओ? 4s, 4p, 4d, 4s, 4p, 4d. Yes. And if n is equal to 5, होने कितने 4 चाहिए? subshells. 4 subshells maximum. Why fifth subshell is not discovered? Because we don't have the fourth dimension. हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट के अलावा फोर्थ डायमेंशन अभी तक हमारे सिलेबस के हिसाब से तो डिस्कवर नहीं हुआ है ना. Is the fourth axis discovered? Fourth dimension ma'am. discovered, No, not ma'am. discovered. So that's why we have only 4 varieties of subshells. एक वो जब एक भी डायमेंशन में ना जाए, एक वो जो एक डायमेंशन में जाए, फिर वो जो 2 डायमेंशन में जाए, और ये जब वो 3 डायमेंशंस में जाए. तो देखो सारे केसेस हो गए. अगर तुम में से कोई साइंटिस्ट बन जाता है और हमें फोर्थ एक्सिस देगा तो हमारा n is equal to 5 मतलब 5th सबशेल डिस्कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. Did you follow my point? Why do you have only 4 Yes, ma'am. subshells till date? Why not the 5th subshell? Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So it will be 5s, 5p, 5d, 5f. उसके आगे हमारी काउंटिंग रुक गई. Is it fine? Yes, ma'am. Now tell me yourself. ये मतलब ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूलाज आ जाते हैं कभी कभी. Number of electrons in a shell is given by. You have already done. 2n square. 2n square. Yes. Now a shell is given by a formula 2n square. And if they ask you number of orbitals in a shell, n square. in a shell, in nth shell, then it will be n N square. square. ठीक है. So you can check it yourself. यहाँ पे कितने orbitals होते हैं? Only 1. 1. ये कितने हो जाएंगे? 1 4. plus 3. हाँ तो कितने number of orbitals? Isn't it 2 का square? Yes. Yes. यहाँ पे चेक करो कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे. 1, 3 and how much? 5. Isn't it 9 का 3 3 का 9? Yes, ma'am. और ये काउंटिंग हमारी 4 तक बिल्कुल सही जाती है बिकॉज अभी हमें सिर्फ 3 डायमेंशंस पता है. ओके. Ma'am, please open the previous page. Yes, ma'am. Finished? Yes, ma'am. Okay. So now moving to the next one. तो ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस आ सकते हैं तो अभी याद रहेंगे ये फॉर्मूलाज. मतलब एक्चुअली तो ये कोई फॉर्मूलाज नहीं है बट इंटरप्रिटेशंस हैं. बट will you be able to recall them? Yes. Yes. Yes, ma'am. Now move to the next one. So next one क्या है तुम्हारे पास? So next one is azimuthal quantum number. How do you represent azimuthal quantum number? L. L. Yes, it is remembered by L. So it basically describes what the shape of the subshell. Okay, it describes what shape of the electron cloud. Shape of the मतलब कौन से track पे वो चल रहा है. Electron cloud. Okay, L की जो values होती है वो n पे depend करती है. तो L can have values from 0 to n minus 1. मतलब n की वैल्यू L की वैल्यू n के बराबर कभी नहीं होती. मतलब if supposing n is equal to 1 तो L की क्या वैल्यू होनी चाहिए देख के बताओ. 0. 0. और किसकी होती है L is equal to 0? S. S. That is the reason first orbit has only s subshell. Isn't it? Isn't it? Yes. Yes, Yes. ma'am. अब अगर n की वैल्यू 2 रखें तो L की क्या पॉसिबल One. वैल्यूज होंगी? 0 and 1. 0 and 1. 0 का मतलब 2s subshell और 1 किसके लिए होता है? 2p. Yes. P. Can you follow now? If n is equal to 3, how many possible values will it have? 3. 0, 1. 3. That means this will represent 3s, 3s, 3p, 3d. 3d. Did you follow now? देखो ये सब connected Yes, चीजें हैं ma'am. जो यहाँ पे की थी. Number of shells is equal to number of subshells. Same thing. अब मैंने उसको बस इस way में define कर दिया. Can you follow? Yes, ma'am. ठीक है. Then moving to the next one. अब देखो यहाँ पर ना कई बारी ना बहुत अजीब अजीब से वो आ जाते हैं फिर जैसे फॉर्मूलाज ही आ जाते हैं बेसिकली.
वो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसमें कभी कभी बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, मतलब बस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो जैसे एक पूछा जाता है हम लोगों से, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। ये मैंने तुम्हें कई बार रिपीट कर दिया, लेकिन अब तुम मुझे बताओगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल क्या फॉर्मूला था? 2l 12 plus 1. plus 1. 12 plus 1. Plus 1. Okay, very good. Then if someone asks you maximum number of electrons in a subshell, 2. 2 2. in a subshell, in a orbital नहीं, in a subshell, तो number of orbitals और एक orbital के अंदर 2, isn't it? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. अब देखो एक सबसे कंफ्यूजिंग चीज पूछी जाती है, ठीक है, इसमें मतलब ज्यादातर टाइम ना बच्चे डाउट मतलब क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं, तो इसलिए मैं दोनों चीजों को ना अब सेम वे में बताने लगी हूँ। एक आता है तुम्हारे पास में, पूछा जाता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट? MVR just no pi. Yes, momentum of electron in an orbit. Okay, in an orbit. So ये इसका फॉर्मूला कहता है MVR is equal to NH/2 pi. मतलब it depends on what? Principal quantum number. It depends on what? Principal quantum number. But क्या होता है ऑर्बिटल में px, py, pz में जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो उसका खुद का भी एक मोमेंटम क्रिएट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, देखो इतने छोटे से वर्ड से पूरा जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और फिर यू कम रनिंग कि मैंने एडेड अ सिली मिस्टेक। सो दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका जो फॉर्मूला होता है इट इज L into L plus 1, L into L plus 1 H/2 pi। और इसको H/2 pi को कुछ बुक्स जो होती है ना वो ऐसे लिख देती हैं, L into L plus 1 H dash। H dash stands for H/2 pi. Can you follow this? Yes, ma'am. और इसका Yes. यूनिट होता है बोर, मैग्नेटॉन या फिर BM। ठीक है, सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल कैसे पता चलता है? L की वैल्यू से, अजीमुथल क्वांटम नंबर से। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? This is Bohr magneton. यस, बोर मैग्नेटॉन। Okay. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? L की वैल्यू पे। ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम। कैन यू फॉलो दिस? Yes. So tell me what will be the orbital angular momentum for S subshell? For S subshell. S subshell के लिए L वैल्यू क्या होती है? 0. 0. तो क्या हो जाएगा? H/2. H/2 pi. Anything multiplied by 0 will become what? 0. 0. Now P subshell के लिए करके बताओ जरा। P subshell के लिए करो। √2 into H/2. H/2. वेरी गुड। D subshell के लिए करो जरा। √6 into H/2. √6/2. Can you follow now? Yes, ma'am. Difference between orbit and orbital? डिफरेंस बिटवीन, यहाँ सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है इसलिए मैंने ये स्पेसिफिकली तुम्हें बताया। ठीक है, ऑर्बिटल हम लोग जनरली यहाँ नहीं डिस्कस करते हैं, ऑर्बिट वाला ये तो पहले ही कर देते हैं, बट ऑन पर्पस मैंने यहाँ लिखा बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व्ड यू पीपल डूइंग, योर सीनियर्स डूइंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक इन दिस, दे गेट कंफ्यूज्ड। नाउ विल यू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस थिंग? आर यू श्योर अबाउट इट? Yes. Yes. Yes, ma'am. Very good. Then comes the another one, that is magnetic quantum number. This is the last thing we are doing for today. Spin क्योंकि थोड़ा extensive है और वो solution का part भी नहीं है, तो इसको मैं extensively बाद में explain करूँगी, next class में करेंगे मतलब। So this is, so what did the spin tell you, magnetic quantum number tell you? The orientation, कि वो कौन से axis के along जा रहा है। So it describes the orientation of the subshell, कि x axis के along है, y axis के along है या z axis के along। It can have values from कहाँ से कहाँ रेंज कर सकती हैं? -L2 L2 plus L. plus L, including Including zero। zero. टोटल वैल्यूज कितनी हो गई?
How many values total? 3. 3 कैसे बेटा? How many total values? 12 12 plus 1. plus 1. 12 plus 1. ठीक है. So जैसे for example S की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, P की वो आएंगी, तो S subshell will have only one value, that is M is equal to 0. P subshell will have how many? 3 3. values. Why 3 values? L is Because we -1, have 0. Px, Py and Pz. Every value is denoting one direction, isn't it? D subshell will have how many? 5. 5 values. Why 5 values? Because there can be 5 different ways the electron can rotate. Can you follow now? Yes. And dz. Did you follow now? Yes, Yes. ma'am. So did you follow these quantum numbers? Yes, ma'am. Yes. ओके तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतना ही रखते हैं. फाइन. एंड वी विल लाइक कंटिन्यू दिस थिंग इन द नेक्स्ट क्लास. और उसमें फिर तुमको वही चीज़ है, अभी तुमने पढ़ के आएगा तो थोड़ा अच्छा फॉलो किया कि नहीं किया?